Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss the MCQs from the chapter of Dynamics for Cambridge O-Level and IGCSE Physics. As this is quite a lengthy chapter, so I have divided into different parts. So don't forget to watch all the parts so that you can have an idea of all the questions related to the dynamics. Now in this part, in the first part, I'll be explaining the questions related to the forces, means के balanced and unbalanced forces, Newton's laws and vector addition. Now before solving the questions, if you haven't watched these two videos, then I recommend you first go through these videos, then come back to solve these questions. बिकॉज जब तक आप इन टॉपिक्स का आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली. ठीक है ना. अगर आपने दैट्स वाई अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, ये दो वीडियोस फोर्सेस एंड वेक्टर्स, these are available on my channel. I'll also share the link in the description. आप पहले इन वीडियोस को अच्छी तरह देख लें, then come back to solve these questions. ठीक है. और अगर आपने देख लिए then we are moving to the questions. थोड़ा सा हम recap कर लेते हैं कि what are the important points related to these topics. अब देखिए, when we talk about the force, तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करना हो, तो फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. मींस कि दिस इज द फार्मूला जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. After that, we discussed balanced and unbalanced forces. Now, as I discussed in the lecture as well, it's very much important that you must know कि इन फोर्सेस का बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो दिस इज द समरी ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस में है एंड यू वांट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, so you have to apply a force on that object. Similarly, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है and you want to stop that object, again आपको उसके ऊपर unbalanced force apply करनी पड़ेगी. Same way, unbalanced force you can change the speed or you can change the direction. ठीक है. So these are the effects which are produced by unbalanced forces. सिमिलरली जो बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, रिमेंबर दिस थिंग, बैलेंस फोर्स से कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती. इट मीन्स कि अगर वो रेस में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट. इफ इट इज मूविंग, सिंपली व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब पहले अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो जैसे ही ड्यूरिंग इट्स मोशन जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन इट विल स्टार्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है देयर वोंट बी एनी acceleration. So these are the effects of balanced and unbalanced forces. इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा हम recap कर लेते हैं what are the Newton's laws. So there are three laws of Newton. Sorry, laws of motion. They are called the Newton's laws of motion. Now the first law, means the statement of the first law is that this is explaining the same concept which we discussed in the effects of balanced and unbalanced forces. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस में है और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, सो दैट इज ओनली पॉसिबल आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, आप इसको स्टॉप करवाना चाहते हैं, मीन्स के इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई सम unbalanced force on the object. So this is the concept of Newton's first law. इसी तरह जो second law है, that relates the relationship between force and acceleration. It means के आप जितना ऑब्जेक्ट का मास लार्जर होगा, आप सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी. मीन्स के दिस इज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन. इसी तरह जो न्यूटन थर्ड लॉ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for every action force, remember this thing, in simple words हम ये कहते हैं for every action there is an equal and opposite reaction, but that action is actually relating to the force. कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, आप या कोई भी ऑब्जेक्ट एक फोर्स अप्लाई करता है, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स अप्लाई होती है, वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड. Now, अब हम आते हैं questions पे. Now, the first question is that a metal ball of mass 0.30 kilograms and weight is 3 Newton.
रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको वेट नहीं भी गिवन होता तो यू कैन फाइंड द वेट सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग विद द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, दैट इज 10, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर आप उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। is held on, so that it is below the surface of oil, it experiences an upward force of 0.3 newton, means के इस ball के ऊपर there are two forces acting, one the weight which is acting downward and there is an upward force of the oil which is acting upward, और उसका जो magnitude है that is 0.30 न्यूटन। अब आपने बताना है जब ये दोनों फोर्सेस इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रही होंगी तो बॉल में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो आपने फाइंड करनी इनिशियल एक्सेल, मींस के जब ये बॉल मूव करना स्टार्ट करेगा तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि देखें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स या व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग। और रिजल्टेंट फोर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वी जस्ट सब्ट्रैक्ट, मींस के हमने एक फोर्स को पॉजिटिव लेना होता है और उसकी जो ऑपोजिट फोर्स है उसको हमने नेगेटिव लेना होता है। अगेन एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द लेक्चर, इट्स अप टू यू, आप किसी भी फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी नेगेटिव को, बट जनरली हम ये कर रहे होते हैं कि जो लार्जर वैल्यू है हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और स्मॉलर वैल्यू को नेगेटिव, ठीक है ना। सो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, सो दैट विल बी 2.7 न्यूटन, ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन किस तरह, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने फोर्स फाइंड करनी है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, सो अब हम अगर फार्मूला को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज 2.7 न्यूटन एंड मास इज 0.30 किलोग्राम्स। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगी दैट इज 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इट मींस के ऑप्शन बी is correct. Now the next question is that in which situation is the resultant force on the body equal to 0? आपने बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्ट कर रही होगी। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्ट करने का मतलब ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, बिकॉज अनबैलेंस्ड फोर्सेस से कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होता। कब रिजल्टेंट 0 होता है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। इट मीन्स कि आपने वो सिचुएशन फाइंड करनी है कि जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दोज फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्सेस मतलब ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट के, अभी हमने डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस फोर्सेस, कि जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट करती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होगा उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट मीन्स कि आपने वो ऑप्शन फाइंड करना है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि वेलोसिटी का मतलब होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब अगर आप कंपेयर करें ऑप्शंस को तो देखिए ए है अ कार टर्निंग अ कॉर्नर एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है, मींस का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट वो जब टर्न कर रही होगी तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट मींस के दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, इट मींस के इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो बैलेंस्ड नहीं होंगी। सेम लाइक अ रॉक फॉलिंग फ्रीली ऑन द मून, फॉलिंग फ्रीली कर रहा होता है, अगेन इसका मतलब होता है फ्रीली फॉल का मतलब होता है उसके ऊपर सिर्फ जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो अगेन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी तरह अगर आप सी को देखें, अ ट्रेन गोइंग अप अ स्ट्रेट हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें आप देखें स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, सो दैट मीन्स के दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम डी को भी देख लेते हैं, एन एयरक्राफ्ट एक्सेलरेटिंग अलोंग अ रनवे, एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब है ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर ये नहीं हो रही एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन्स के उसके ऊपर भी फोर्सेज जो एक्ट कर रही होंगी वो अनबैलेंस्ड फोर्सेज होंगी। सो इन दिस वे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। Now the next question is that, now this question is related means के to the concept of energies
इस टॉपिक से ये कम रिलेटेड है, बट एज वी हैव टू सॉल्व बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन विद द डायनामिक्स. सो इस क्वेश्चन को हम देख लेते, थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज होंगे एनर्जी के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एज इट इज ड्रिवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड अप अ हिल. आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है. अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप देखें इट्स मेंशन कि वो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. अगर आपको नहीं भी मेंशन होता, सो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, इफ देयर इज अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन, इट रिप्रेजेंट्स दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है ना, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. और इसके साथ ये गिवन है कि स्ट्रेट रोड पे, इट मींस कि इट्स नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ उसका जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है. अब आपने बताना है which quantity for the car is constant but not zero. क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड की, तो देखें एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी मींस के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेलोसिटी एक्ट कर रही है दैट इज आल्सो कांस्टेंट. ठीक है ना, क्यों कांस्टेंट होगी? बिकॉज एक तो डिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि इसकी स्पीड कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, प्लस उस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही. दैट मीन्स कि ये जो मोशन है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये रिप्रेजेंट करी कांस्टेंट वेलोसिटी को. अब कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होगी. ठीक है ना, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नो चेंज इन एक्सेलरेशन. तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो. आपने वो क्वांटिटी फाइंड करनी जो कि कांस्टेंट है बट नॉट जीरो, दैट मीन्स कि वो एक्सेलरेशन नहीं हो सकती. इसी तरह अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स विल आल्सो बी जीरो, बिकॉज अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि रिजल्टेंट फोर्स, अब जीरो का मतलब है बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही है, और जब बैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती. इसका मतलब ये तो दोनों होगी जीरो. अब हम बात करते हैं जो रिमेनिंग दो हैं एनर्जी के फॉर्म्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कांस्टेंट होगी. ठीक है ना, दैट मीन्स के यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कांस्टेंट होगी. इट मीन्स के ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. हमने वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जो कि कांस्टेंट है बट नॉट जीरो. अब हम देख लेते हैं ये जो रिमेनिंग ऑप्शन है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, और ये यहाँ पर फिक्स्ड मीन्स के कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी. अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे. अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे जितना मूव करेगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी चेंज होती जाती है, उतनी मीन्स के इंक्रीज होती जाती है. ठीक है ना, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कार है वो इट इज मूविंग अप अ हिल, मतलब वो एक मूव कर रही है जो है अलोंग स्ट्रेट अप अ हिल, मीन्स के उसके जो हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. तो हाइट के इंक्रीज होने का मतलब ये होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इंक्रीज होती रहेगी. इट मींस इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. सो अब आप देखें एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों जीरो है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये वेरिएबल है, तो इट मींस के कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a car of mass 1500 kilogram travels along a horizontal road. It accelerates steadily from the 10 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds. What is the force needed to produce acceleration? आपने बताना है कि अगर उसकी स्पीड जो है वो 10 से 25 मीटर पर सेकंड होती है इन 5 सेकंड्स, तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन कितनी उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी. सो देखिए फोर्स का जो फार्मूला होता है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. तो मास तो हमें ऑलरेडी गिवन है. अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी टाइम तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है, हमने फाइंड कर ली एक्सेलरेशन. जब एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली, नाउ सिंपली अप्लाई द फार्मूला ऑफ द फोर्स दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4500. Now next question is that balanced forces are acting on a moving object. What happens to the direction of the movement and to the speed of the body?
आपने ये बताना है कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो आपने बताना है उसकी डायरेक्शन और स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया इफेक्ट्स में कि जब बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करती हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अब वेलोसिटी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्शन भी आ जाती है और उसका जो मैग्नीट्यूड है विच इज़ कॉल्ड स्पीड वो भी आ जाता है। तो दैट मीन्स के बैलेंस फोर्सेस जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेंगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मीन्स कि उसकी स्पीड भी सेम होगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। Now, next question is that a student kicks a ball horizontally along the ground. As he does so, his foot applies a force to the ball. At the same time, the ball applies a force to his foot. How do these forces compare? अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि अगर आप वो जो स्टूडेंट है जब वो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ऑन द सेम टाइम बॉल विल आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन हिज फुट, ठीक है ना। अब वो दोनों फोर्सेस जो होंगी वो किस तरह रिलेटेड होंगी। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ both forces will have the same magnitude but they will act in the opposite direction। इसका मतलब ये होगा कि जो बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी मीन्स के तो उसके रिएक्शन में बॉल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इट विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Now next question is that a hard stone hits the ground and comes to the rest immediately. As the stone hits the ground, what is the direction and size of the force acting on the ground? आपके मतलब एक स्टोन है जो कि अर्थ की तरफ फॉल करता है और अर्थ पे पहुंचते ही वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। अब आपने बताना है उस स्टोन के ऊपर मतलब जो स्टोन है वो जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा होगा उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। साइज का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखिए जस्ट कंसीडर दिस स्टोन, अब जब ये ग्राउंड के ऊपर फॉल करेगा तो अब आप देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। तो दैट मीन्स के इसको इमीडिएटली स्टॉप करवाने के लिए देयर मस्ट बी सम एडिशनल फोर्स। मतलब पहली बात तो ये कि वो नीचे किस वजह से आ रहा होगा, फॉल किस वजह से कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ठीक है ना। जो ग्रेविटी होती है वो होता है इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, तो वेट की वजह से वो नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा तो करने के साथ इट्स मेंशन द क्वेश्चन कि वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करवाने के लिए देयर मस्ट बी सम एडिशनल फोर्स जो कि उसकी मोशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसकी जो मोशन को स्टॉप करवा देती है। नाउ अब क्वेश्चन इज दैट अब ये तो हमें पता चल गया कि वो जो फोर्स है अलोंग विद द वेट वो एडिशनल फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो फोर्स कहाँ से आएगी उस स्टोन के पास। तो देखें वो जो फोर्स होगी दैट विल डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टोन एंड द ग्राउंड। अब आप देखें ग्राउंड भी मोस्टली अनइवन होता है, प्लस जो स्टोन की सरफेस होती है दैट इज ऑल्सो एन अनइवन सरफेस। तो जब दोनों अनइवन होंगी तो इसका मतलब होगा वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट एज एन एडिशनल फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। आप देखें दिस इज यू कैन एक्सपीरियंस इन अ रियल लाइफ कि आप ऑब्जेक्ट को किसी स्मूथ सरफेस पे जब थ्रो करते हैं तो वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मोशन होती है। लेकिन जब आप उसको रफ सरफेस पे आप थ्रो करते हैं तो वो उस कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस से जल्दी स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स कि रफ सरफेस क्या करती है, उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ कि ऑप्शंस करेक्ट कौन सा होना चाहिए। अब देखें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइज एंड द डायरेक्शन। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी बिकॉज स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है जो फोर्स स्टोन जो ग्राउंड के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो भी डाउनवर्ड होगी, ठीक है ना। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखें जब स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डेफिनेटली स्टोन का कुछ वेट होगा। अब वो वेट प्लस ये जो एडिशनल फोर्स है जो कि मोशन को स्टॉप कर रही है
दोनों फोर्सेस मिलके उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा रही है, इस स्टोन को स्टॉप करवा रही है, तो दैट मीन्स कि उस फोर्स का जो साइज होगी, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी लार्जर देन द वेट ऑफ द स्टोन। अगर वो लार्जर नहीं होता तो ये स्टोन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, ये बाउंस बैक होता रहता, ठीक है ना। अगर ये इमीडिएटली स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स के उसका जो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, वो उस स्टोन के वेट से थोड़ा सा लार्ज है, ठीक है। Now next question, a car of mass 1500 kilogram is towing a trailer of mass 1100 kilogram along a road. The acceleration of the car is 1.3 meters per second square. Ignoring the friction and air resistance, what is the driving force? मतलब सिंपली आपने फाइंड करना है कि ये जो मास होंगे कार का और ट्रेलर का, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों को कंबाइन करके आपने बताना है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू मूव दैट कार। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, कार है और ट्रेलर है, तो डेफिनेटली जब वो साइमल्टेनियसली मूव करे होंगे तो ओवरऑल जो मास होगा दैट विल बी कंबाइंड मास ऑफ बोथ कार एंड द ट्रेलर, तो दैट विल बी 2600 किलोग्राम्स, ठीक है। अब मास भी हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी गिवन, तो सिंपली हमने फाइंड करनी है फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला एफ इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, सो दैट विल गिव अस द वैल्यू 3380 न्यूटन। Now next question is that an aeroplane is halfway along a runway before it takes off. मतलब ये कि एरोप्लेन है जो कि अभी तक रनवे में है, मतलब ये कि अभी इसने जो है टेक ऑफ नहीं किया, स्टिल इट्स ऑन रनवे। द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन, ठीक है ना। एरोप्लेन के ऊपर थ्रस्ट फोर्स ऑफ द जेट इंजन, ठीक है, एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपको गिवन है, ठीक है। ये जो थ्रस्ट फोर्स होती है, जस्ट रिकॉल कि जब हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस किए थे इन द लेक्चर ऑफ फोर्सेस, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि आपने वो वीडियो देखनी है, तो इन दैट वीडियो वी डिस्कस दिस टाइप ऑफ फोर्स के जो थ्रस्ट होती है, ये वो फोर्स होती है जब ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है, मीन्स के किसी लिक्विड या गैस के अंदर मूव करता है, तो उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। मीन्स के या आप ये कह लें उसको जो फॉरवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो होती है थ्रस्ट, ठीक है ना। बट इन दिस केस ऑब्जेक्ट जो है एरोप्लेन है, ये अभी तक इसने टेक ऑफ नहीं किया, इट्स मूविंग ऑन द ग्राउंड, सो दैट मीन्स कि इस कंडीशन में जो थ्रस्ट फोर्स होगी उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी लेस, वो फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब आपने सिर्फ ये बताना है कि इन फोर्सेस को कंपेयर करके कौन सी फोर्स है जो कि लार्जर होगी, ठीक है ना, लार्जेस्ट फोर्स आपने बताना है। तो अब आप देखें ग्राउंड जो एरोप्लेन है विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अभी हमने देख लिया कि थ्रस्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर हम कंपेयर करें लिफ्ट एक्टिंग ऑन द विंग्स और वेट को, तो देखें एरोप्लेन ग्राउंड के ऊपर स्टिल इट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो इसका मतलब इसकी जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट विल बी ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। अगर ये अपवर्ड फोर्स ग्रेटर होती तो एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव कर जाता, बट इफ इट्स नॉट lifted up, it's on the surface of the ground, surface of the earth, that means कि इसका जो वेट है इस कंडीशन में वो ओवरऑल सबसे क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड लार्जेस्ट फोर्स, तो इस कंडीशन में जो लार्जेस्ट फोर्स होगी दैट विल बी द वेट ऑफ द एरोप्लेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डायग्राम शोज अ फायरवर्क रॉकेट, as the rocket flies through the air, three forces act on it. These forces are weight, thrust and the air resistance. What are these forces? आपने बताना है इन चारों में से कौन सी फोर्स थ्रस्ट है, कौन सी एयर रेजिस्टेंस है और कौन सी वेट है। अब पहले हम बात कर लेते हैं वेट की। तो देखिए वेट जो होता है इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, रिमेंबर दिस थिंग, ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इट मीन्स के ये जो आर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेट, ठीक है, ये तो हो गया वेट। अब जो थ्रस्ट होती है, एज इन प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि थ्रस्ट इज द फॉरवर्ड फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर जो फॉरवर्ड फोर्स एक्ट करती है दिस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो देखें जब ये रॉकेट एयर में मूव करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करी होगी दैट इज द थ्रस्ट, इट मीन्स कि क्यू होगा थ्रस्ट। और जो एयर रेजिस्टेंस होती है, रिमेंबर दिस थिंग, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है एयर रेजिस्टेंस उसके ऑपोजिट एक्ट करती है। तो अगर हम देखें ऑब्जेक्ट
क्यू की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो ऑपोजिट फोर्स होगी एस, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। अब हमने तीनों फोर्सेस फाइंड कर ली। नाउ जस्ट फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी द डी। Thrust is the Q, air resistance is the S, and weight is the R. Now, next question is that a propeller on the boat pushes water backwards with the force of 2000 Newton. Propeller है means के an engine of the boat जो कि water के ऊपर जो force exert कर रही है backward direction में, that is 2000 Newton. The boat moves through the water against the total resistive force of 1800 Newton. और इसके ऊपर जो resistive force act कर रही है that is 1800 Newton. According to the Newton's third law, again remember this thing, आप क्वेश्चन को आंसर एज आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे, इट माइट बी पॉसिबल आप करेक्ट आंसर ना कर पाए, इवन दो आपको पता भी होगा, बट अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे स्टेटमेंट को, तो इट माइट बी पॉसिबल आप मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन आपको फोर्सेस गिवन है, रेजिस्टिव फोर्स भी गिवन है, और जो वाटर के ऊपर फोर्स लग रही है वो भी आपको गिवन है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हाट इज द फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू द वाटर। आपने ये बताना है यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ कि ये जो प्रोपेलर है अगर ये वाटर के ऊपर 2000 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वाटर इस प्रोपेलर के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। आपने टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है आपने वो फाइंड नहीं करनी, आपने सिंपली ये बताना है कि इस प्रोपेलर के ऊपर, इस इंजन के ऊपर जो वाटर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कितनी होगी। और आपको एक हिंट भी गिवन है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोपेलर वाटर के ऊपर 2000 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वाटर भी इस प्रोपेलर के ऊपर 2000 की फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपने सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितनी फोर्स प्रोपेलर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वाटर, तो दैट मींस के दैट विल बी 2000 Newton. Now next question is that an engine pulls a truck at a constant speed on a level road. The link between the truck and engine breaks. ठीक है ना, एक constant speed के साथ इंजन मूव कर रही है, but after some time ये जो लिंक है ये ब्रेकअप हो जाता है। द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो इंजन के ऊपर ड्राइविंग फोर्स लग रही है वो उसमें लिंक ब्रेक होने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब आपने ये बताना है what effect does this have on the truck and on the engine। जब ये लिंक ब्रेक हो जाएगा और जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है इंजन के ऊपर वो कांस्टेंट है, तो आपने बताना है ट्रक के ऊपर और इंजन, दिस इज नॉट ई, दिस इज एन इंजन, ठीक है। आपने बताना है इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंजन ट्रक की। अब देखें जब ट्रक लिंक ब्रेक हो गया तो इट मीन्स कि अब ट्रक के ऊपर या ट्रक को मूव करवाने के लिए जो फोर्स थी वो फोर्स खत्म हो गई। तो जैसे ही फोर्स खत्म होगी, सो जस्ट रिकॉल, हमने ये डिस्कस किया था इन द लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फॉरवर्ड फोर्स कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होता बट वो स्लो डाउन होता है। मीन्स के पहले वो डिसेलरेट करेगा, जब जीरो पे पहुंचने के बाद स्टिल अगर बैकवर्ड फोर्स कंटिन्यू होगी, ग्रेटर होगी, देन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही लिंक ब्रेक होगा, अब ट्रक के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो फोर्स खत्म हो गई, तो उसका इफेक्ट ये होगा, ट्रक क्या होगी, वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। स्लो डाउन होते होते वो आ जाएगी जीरो पे, ठीक है ना। इमीडिएटली स्टॉप नहीं करेगी, वो पहले डिसेलरेट करेगी, उसके बाद जाके वो जीरो पे पहुंचेगी, स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए इंजन का इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए देखिए फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो इस फार्मूला से अगर हम एक्सेलरेशन और मास के दरमियान रिलेशन फाइंड करें तो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास। इसका मतलब ये है कि जब लिंक ब्रेक हो गया, अब जो मास होगा वो कम हो गया, बिकॉज पहले ट्रक और इंजन दोनों का मास होगा। अब क्या हो रहा है, ट्रक का मास उसमें इंक्लूड नहीं है, स्टिल फोर्स इज सेम। तो अब क्या होगा कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब होगा कि अगर मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन
क्या होगी विद द सेम फोर्स, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है उस ट्रक की जो, उस इंजन की जो स्पीड है वो पहले से ग्रेटर हो जाएगी। सो इफेक्ट क्या होगा, ट्रक स्लो डाउन होगी और इंजन क्या होगा, इट विल स्पीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अब यहाँ पे आपको एक एरोप्लेन गिवन है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट इज गिवन इज गेनिंग स्पीड, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो फ्लाई कर रहा है एट कांस्टेंट हाइट, ठीक है, उसकी हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही। आपको चारों फोर्सेस भी गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन मीन्स के आपको चारों फोर्सेस कौन कौन सी है, लिफ्ट ड्यू टू द विंग, रेजिस्टेंस, थ्रस्ट ड्यू टू द इंजन एंड वेट आपको गिवन है। आपने बताना है विच रो इज द करेक्ट। अब आप देखें इन द गिवन स्टेटमेंट, अगर उसकी हाइट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो दोनों बैलेंस्ड है। इसका मतलब है इसकी जो लिफ्ट है ड्यू टू द विंग और वो इक्वल होगी वेट के, बिकॉज इसकी हाइट मीन्स के इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जो जो वर्टिकल फोर्सेस होंगी वो भी बैलेंस्ड होंगी, ठीक है ना। अब एरोप्लेन मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा डेफिनेटली उस डायरेक्शन की जो फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी। तो दैट मीन्स के जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट इज द थ्रस्ट ड्यू टू इंजन, दैट विल बी ग्रेटर देन द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो वर्टिकल फोर्सेस में क्या होगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जो टी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द आर। इट मीन्स के ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Now next question. A person just supports a mass of 20 kilograms suspended from a rope. What is the resultant force acting on the mass? आपने ये बताना है कि ये पर्सन है जिसने इस मास को 20 किलोग्राम मास को होल्ड किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मूव, ये मास मूव नहीं करा, तो आपने बताना है इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। अब पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। सो अब देखिए, एक तो डेफिनेटली इसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। दूसरी बात ये है कि जिस रोप से इसने जो पर्सन है इसने हैंग किया हुआ है, इस वेट को पुल किया हुआ है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। दो फोर्सेस ये एक्ट कर रहे होंगी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, इट्स जस्ट सस्पेंडेड, इट्स एट रेस्ट, इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, बैलेंस्ड होंगी, ठीक है ना। अब हम फाइंड कर लेते हैं इन फोर्सेस का मतलब अगर हम एक का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अब टेंशन को तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वेट को हम कर सकते हैं। किस तरह, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द मास विद द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें पता चल we'll find the weight to 200 न्यूटन। इसका मतलब है इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो भी 200 न्यूटन होगा, और इसमें जो टेंशन होगी दैट विल आल्सो बी 200 न्यूटन। लेकिन क्वेश्चन में आपसे इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। दैट मीन्स के अब देखें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो जब दो सेम मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो दैट मीन्स के उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज जीरो, या फिर हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में फोर्सेस बैलेंस्ड है और बैलेंस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज जीरो। Now next question is that a tractor pulls a trailer at a constant speed. The tractor exerts a forward force of 1600 Newton on the trailer. What is the force exerted by the trailer on the truck? एक ट्रैक्टर है जो कि ट्रेलर को पुल कर रहा है और कितने फोर्स के साथ पुल कर रहा है, 1600 न्यूटन। तो आपने बताना है जो ट्रेलर इस ट्रैक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ट्रैक्टर ट्रेलर के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है that is 1600 Newton, so definitely this troller will also be exerting a force in the opposite direction with the same magnitude. तो इसका मतलब होगा जो ट्रॉलर इस ट्रैक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो उसका मैग्नीट्यूड 1600 होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी बैकवर्ड। इट मींस के ऑप्शन B is the correct one. Now next question is that how is the motion of the body affected by the balanced and unbalanced forces acting on it? So इसमें simply आपने बताना है जो velocity है
वो किस तरह चेंज होगी बैलेंस्ड और अनबैलेंस में। तो ये हम मैनी टाइम्स हम रिपीट कर चुके हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस के इफेक्ट में, कि बैलेंस फोर्सेस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इट रिमेंस कांस्टेंट, और अनबैलेंस फोर्सेस में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इट कीप्स चेंजिंग, ठीक है ना। सॉरी, दैट मीन्स के बैलेंस फोर्सेस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और अनबैलेंस फोर्सेस में वेलोसिटी चेंज होगी। Now the next question is that forces of 30 Newton and 50 Newton acts on the same body but in different directions, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, 30 न्यूटन 50 न्यूटन, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब डिफरेंट का मतलब हम जरूरी नहीं कि वो ऑपोजिट हो, कुछ भी हो सकती है, मीन्स के सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, या फिर किसी भी दो डायरेक्शन, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, वो कोई और पर्टिकुलर एंगल भी बना सकती हैं, बट दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। नाउ विच वैल्यू कुड नॉट बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, मतलब आपने बताना है कि इन वैल्यूज में से कौन सी फोर्स है जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो सकती। अब देखें, अगर ये हमें पता होता कि अगर सेम डायरेक्शन में, तो हम इनका रिजल्टेंट सिंपली फाइंड कर लेते एडिंग देम, या फिर अगर हमें ये पता होता कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी हम इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग। बट यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं गिवन, और हमने ये बताना है कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं रिजल्टेंट की। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई एम जस्ट गिविंग एन हिंट, उस हिंट को आप याद कर लें। क्या है वो हिंट? जब अगर मीन्स के जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स होगी वो तब होती है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, मीन्स के जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, सो उस कंडीशन में जो स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट फोर्स आएगी। इसी तरह लार्जेस्ट रिजल्टेंट फोर्स तब आएगी जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट फाइंड करें फॉर दीज कंडीशंस, तो स्मॉलेस्ट कब होती है? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग देम। इट मींस के जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स हो सकती है इन दोनों की, वो होगी 20। इसी तरह जो लार्जेस्ट पॉसिबल फोर्स होगी वो कब होगी? जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो इट मींस के रिजल्टेंट फाइंड करने हम उनको ऐड करेंगे, दैट मींस के 80 न्यूटन इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट फोर्स इन दिस कंडीशन। तो इसका मतलब होगा कि इन 30 और 50 की जो रिजल्टेंट फोर्सेस आ सकती हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती हैं? 20 न्यूटन से 80 न्यूटन, इस रेंज के अंदर आ सकती हैं। अब आपने सिंपली फाइंड करना है कि ऐसी वैल्यू जो कि इस रेंज में नहीं एग्जिस्ट करी, दैट मीन्स के दैट कैन नॉट बी द रिजल्टेंट फोर्स। तो सिंपली आप देखें, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करी, सो दैट इज द 10 न्यूटन। मतलब ये कि इस कंडीशन में 10 न्यूटन कभी भी रिजल्टेंट नहीं आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 20 न्यूटन के 20 न्यूटन से 80 न्यूटन के दरमियान होगा। सो दैट मीन्स के करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which is the statement of the Newton's third law of motion। आपने बताना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ स्टेटमेंट क्या है। सो सिंपली स्टेटमेंट ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, इट माइट बी कंफ्यूजिंग। अब देखें, ऑप्शन ए है एवरी फोर्स कॉजेज अ रिएक्शन। दिस इज नॉट पॉसिबल कि एवरी फोर्स कॉजेज अ रिएक्शन, ठीक है ना। कुछ फोर्सेस होती हैं जो रिएक्शन कॉज करती हैं, कुछ होती हैं जो नहीं करती, ठीक है। इफ देयर इज अ नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, बट दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी तरह सी फोर्सेस एक्टिंग द ऑब्जेक्ट और ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। फोर्सेस जो एक्ट कर रही होती हैं ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा दे आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, वो इक्वल और ऑपोजिट होती है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पर फोर्सेस का मतलब है मल्टीपल फोर्सेस, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हमेशा फोर्सेस इक्वल हों, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और उनकी डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है। आपने सिंपली स्टेटमेंट बतानी है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, सो दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। Now the next question is that trolley X and trolley Y are joined by the stretched spring. Trolley X has a twice the mass of the trolley Y. When the trolleys are released, the acceleration of X is 2 meters per second to the right. What is the initial acceleration of trolley Y to the left? अब देखें, जब आप स्प्रिंग दोनों में अटैच्ड है
जब आप रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली बोथ विल एक्सेलरेट। आपने ये बताना है कि अगर x में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है अगर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो y में कितनी होगी। सो देखें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फोर्स जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द मास, ठीक है ना। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। इसका मतलब ये होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास लार्जर होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम मासेस को कंपेयर करें, x का जो मास है दैट इज द ट्वाइस ऑफ द मास y, तो इसका मतलब है मास ऑफ y इज हाफ ऑफ x। तो अगर इसका मास इसके हाफ के इक्वल है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल डबल ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मास दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर इसका मास हाफ है तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी, डबल ऑफ द एक्स, ठीक है ना। सो दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 4 of the gravitational forces that act between the bodies in the solar system are described below। 4 फोर्सेस आपको गिवन है। क्या क्या फोर्सेस हैं देखिए, हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट फोर्स इज द P, जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ। मीन्स के ये फोर्स वो है जो कि मून के ऊपर है, मून के ऊपर एक्सर्ट हो रही है। कहाँ से, अर्थ से। मीन्स के ये वो फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट कर रही है मून के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह जो क्यू फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन। मीन्स के अर्थ के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है सन से, या आप ये कह लें सन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ से, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसी तरह जो आर है दैट इज द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून। मीन्स के वो फोर्स जो कि मून एक्सर्ट कर रहा है अर्थ पे। इसी तरह एस भी आपको गिवन है द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द सन। अब आपने इन चारों फोर्सेस को कंपेयर करके बताना है which two forces are the Newton's third law here, एक्शन एंड रिएक्शन। सो अब आप देखें, सिंपली आप बता सकते हैं कौन सा होगा एक्शन एंड रिएक्शन। पी एंड क्यू, पी एंड आर। देखें पी क्या है, इट्स द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून एंड आर इज द फोर्स ऑफ मून ऑन द अर्थ। सो दे आर द एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। जितनी फोर्स अर्थ मून के ऊपर एक्सर्ट करा है उतनी फोर्स मून अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करा होगा। सो दिस इज एन एक्शन एंड रिएक्शन, पी एंड। Now next question. A man pushes a heavy box along the ground. A force acts between the man's hands and the box, and other force acts between the man's feet and the floor. In which direction do these forces act on the man? Means के आपने ये बताना है, एक ये फोर्स है जो कि जो मीन्स के मेन इस बॉक्स के ऊपर एक्सर्ट करा है यूजिंग हिज हैंड, और दूसरी फोर्स जो ग्राउंड और फीट के दरमियान है। तो आपने इन फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अब हम वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ये जो हैंड्स से वो जो फोर्स एक्सर्ट है। अब देखें जो फोर्स हैंड के थ्रू बॉक्स के ऊपर एक्सर्ट हो रही है दैट इज टुवर्ड्स द राइट, ठीक है ना। अब इसकी जो रिएक्शन फोर्स होगी मीन्स के फोर्स ऑन द हैंड, अब ये वो फोर्स है फोर्स बाय द हैंड। इफ दिस इज इन द राइट डायरेक्शन तो फोर्स ऑन द हैंड्स होंगी इसके ऑपोजिट, मीन्स के दैट विल बी टुवर्ड द लेफ्ट। सिमिलरली अगर हम जो फोर्स बाय फीट है इसकी बात करें तो फीट से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है फ्लोर पे दैट इज इन द टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है ना। इसी तरह जो ग्राउंड या जो फ्लोर है ये जो फीट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो टुवर्ड्स द राइट होगी, ठीक है ना, फोर्स ऑन द फीट। अब आप इजीली बता सकते हैं कि हैंड्स के ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स ऑन द फीट उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब आप देखें हैंड्स पे जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन है दैट इज द लेफ्ट, और ऑन द फीट जो फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द राइट। सो दैट इज द ऑप्शन बी। Now next question. A body slides down a frictionless slope as shown. As the body presses on the surface pushes back on the body. The force on the surface of the body is sometimes called the reaction force. In which direction does the reaction force act? आपने बताना है कि इस सरफेस का जो रिएक्शन फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन एक्ट करेगी। सो फॉर द रिएक्शन फोर्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो रिएक्शन फोर्स होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मीन्स के ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सो अगर ये सरफेस है तो इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही है सो दैट इज द फोर्स सी। सो दिस विल बी द रिएक्शन फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
each diagram shows two forces that are equal in magnitude. Which diagram shows the two forces that are a Newton's third law of पेयर ऑफ फोर्स? मतलब आपने सिंपली बताना है न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर को कौन सी फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो सिंपली वो फोर्सेस होंगी मींस के इन ऑप्शन सी बिकॉज दे आर इन द सेम मैग्नीट्यूड. उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ समटाइम्स ये दोनों फोर्सेज जो है वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये हमें कंफ्यूज करते हैं बिकॉज जनरली इट लुक्स लाइक दैट दे आर आल्सो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमें ये लगता है दिस इज आल्सो अ action and reaction pair. But remember this thing, this is not an action and reaction pair. Sometimes ऐसे होता है कि सरफेस का जो रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है. किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थिन सरफेस के ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आप रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक थिन टेबल है उसके ऊपर कोई हैवी स्टोन प्लेस करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है उस सरफेस के रिएक्शन से जिसकी वजह से वो फॉल डाउन कर जाता है. इट मीन्स कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल हो. दैट्स वाई दे आर नॉट द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. तो एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होंगे वो ऑप्शन सी में होंगे. Now we move to the second part of this video, that is the questions from the vector addition. ठीक है ना? Now again before solving this question, these questions as I discussed at the start of the video, आपने वो वीडियो जो वेक्टर्स एडिशन वाली वीडियो है आपने उसको अच्छी तरह देखना है so that you can have an idea कि how this vector addition is performed. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि we discussed two types of graphical methods for the vector addition. First was parallelogram method. पैरेललोग्राम मेथड में हम किस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हैं? वेक्टर्स को इस तरह ज्वाइन करते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स के टेल हैं, जो एरो होता है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड हेड, और इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द टेल. दोनों वेक्टर्स के टेल एक साथ होते हैं, मींस के ज्वाइन करते हैं. उसके बाद हम ये करते हैं इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल ड्रॉ करते हैं. आफ्टर ड्राइंग द पैरेलल्स जो रिजल्टेंट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द joining point of the tails of the original vectors to the joining points of the parallels. ठीक है ना? इस रिजल्टेंट की जो मीन्स के ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द टेल ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स और कहाँ तक ये जाता है जहाँ पर ये दोनों पैरेलल मीट कर रहे होते हैं और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ दिस पैरेलल होती है. ठीक है, इस तरह हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड. ठीक है, अब एक और हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था दैट इज हेड टू टेल रूल या जिसको हम कहते हैं टिप टू टेल मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेक्टर्स को इस तरह ज्वाइन करते हैं कि जहां पर फर्स्ट वेक्टर का हेड आ रहा होता है वहीं से हम सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं. इसमें हम पैरेलल ड्रॉ नहीं करते बिकॉज दिस पैरेलल ड्रॉ सिर्फ हम पैरेललोग्राम मेथड में करते हैं. इसके बाद इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? जस्ट ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर और उस लाइन की जो लेंथ होगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. मतलब ये कि वेक्टर इस तरह ज्वाइन होंगे, दोनों टेल एक साथ और दोनों हेड एक साथ. ठीक है, सो यू मस्ट नो दीज टू मेथड्स बिकॉज समटाइम्स आपको स्पेसिफाइड होता है कि आपने कौन सा मेथड यूज करके फाइंड करना है रिजल्टेंट. ठीक है, ये थे ग्राफिकल मेथड. इसके अलावा हमने एक और मेथड यूज किया था पैथागोरस थ्योरम. ठीक है ना, ये पैथागोरस थ्योरम से सिर्फ आप वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं फाइंड कर सकते. अब ये होता क्या पैथागोरस थ्योरम? फॉर एग्जांपल दीज आर द टू वेक्टर्स जिसको हमने ऐड करना है. अच्छा, वन मोर थिंग, दिस पैथागोरस थ्योरम कैन ओनली बी अप्लाइड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. अगर ये परपेंडिकुलर होंगे ओनली देन वी कैन अप्लाई द पैथागोरस थ्योरम. ठीक है, होता क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट. ठीक है, अभी हमने देखा था रिजल्टेंट हम इस तरह फाइंड करते हैं. इसके रिजल्टेंट की जो लेंथ होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. किस तरह? जस्ट असाइन वैल्यू वेरिएबल्स के, लेट से दिस इज वेक्टर ए बी और इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. अब ये सी किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम? सी स्क्वायर, मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसमें से अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें तो सिंपली बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, सो दैट विल बी c इज द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो इस फार्मूला से हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. सो दीज वर थ्री मेथड्स व्हिच वी डिस्कस्ड.
अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जस्ट गो थ्रू देम सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये वेक्टर एडिशन हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। First question is that four forces acting on at a point as shown. What is the size of the resultant force? आपने बतानी है कि इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो अब देखें, अगर फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितनी होगी, फिर हॉरिजॉन्टल में, फिर हम ओवरऑल उसकी बात करेंगे। सो वर्टिकल डायरेक्शन में देखें दोनों फोर्सेस 2 न्यूटन की एंड बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 0। इसी तरह हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैं दे आर 4 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। सो इसमें अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें सो दैट विल बी द 4 न्यूटन, ठीक है। सो आपने सिर्फ फाइंड करना है ओवरऑल रिजल्टेंट। तो अब देखें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो रिजल्टेंट 0 आ रहा है, सिर्फ जो आपके पास नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल, सो दैट विल बी द ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज, आपने डायरेक्शन इसकी नहीं बतानी, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बताना है, सो दैट इज 4 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which object has the largest resultant force? आपने बताना इन चारों में से लार्जेस्ट रिजल्टेंट फोर्स कितनी है। अब हम इंडिविजुअली सबकी रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट कंसीडर कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस एक्ट करें तो आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना है और ऑपोजिट को नेगेटिव। नाउ इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आप किसी को भी पॉजिटिव करें किसी को भी नेगेटिव, बट जनरली हम ये करते हैं जो लार्जर वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, स्मॉलर वैल्यू का नेगेटिव, ठीक है ना। सो इन दिस केस अब आप देखें दिस इज द लार्जर वैल्यू, इन दोनों से बड़ी है, सो हम 30 को पॉजिटिव ले लेते हैं और ये दोनों जो है 10 न्यूटन इनको हम लेंगे नेगेटिव। सो इस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह बी में भी हम इस तरह रिजल्टेंट फाइंड करें सो वील गेट 10 न्यूटन, ठीक है। इसमें भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। कैसे, हम इन दोनों को हमने पॉजिटिव लिया और इस 10 को हमने नेगेटिव लिया। सो इसी तरह सी में अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें सो दैट इज 20 न्यूटन और डी में हमारे पास आ गया 15 न्यूटन। अब आपने बताना लार्जेस्ट रिजल्टेंट, सो यू कैन क्लियरली सी कि लार्जेस्ट रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ आ रहा है, इन ऑप्शन सी। Now next question is that the diagram shows three forces acting on a block. Which additional force will produce a resultant of the 3 Newton towards the left? आपने बताना है कि इस कंडीशन में आप कि जो आपने रिजल्टेंट आपने प्रोड्यूस करवाना है 3 न्यूटन टू द लेफ्ट, तो आपको कितनी फोर्सेस जो होंगी वो एडिशनल ऐड करनी पड़ेंगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। अब पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इस कंडीशन में रिजल्टेंट कितना होगा, ये जो करंट सिचुएशन में इसमें रिजल्टेंट कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ यू कंसीडर 11 एज अ पॉजिटिव तो इस ये दोनों जो होंगी वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 6 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट, ठीक है ना। बिकॉज आपके पास स्टिल जो लार्जर फोर्स है वो 11 न्यूटन है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 6 न्यूटन टुवर्ड्स द लाइट। इसका मतलब होगा अब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह होगा, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करी होगी दैट इज 6 न्यूटन टुवर्ड्स द लाइट, बट आपको जो प्रोड्यूस करवाना है 3 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अब देखें, अगर आपने इस कंडीशन में सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करी है वो 6 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट है, अब लेफ्ट पे पहले तो हम ये करते हैं इस रिजल्टेंट को हम जीरो करते हैं, तो जीरो रिजल्टेंट करने के लिए हमें लेफ्ट में भी इसको 6 न्यूटन ऐड करना पड़ेगा। जब हमने 6 न्यूटन लेफ्ट पे ऐड किया तो अब इसका रिजल्टेंट आ गया जीरो, बट स्टिल हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने 3 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट प्रोड्यूस करवाना है, तो उस 3 न्यूटन को लेफ्ट पे प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने फर्दर जो है 3 न्यूटन ऐड करने पड़ेंगे ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। सो जब हम 3 न्यूटन, बिकॉज जब हमने 6 न्यूटन लेफ्ट पे ऐड किया था तो रिजल्टेंट हो गया था जीरो, अब अगर हम 3 न्यूटन लेफ्ट पे ऐड करेंगे तो अब हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 3 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब इस 3 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या किया है, क्या चीज़ हमने ऐड की है, कितनी फोर्सेस हमने एडिशनल लगाई हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। अब देखें हमने कितनी फोर्सेस ऐड की हैं, 6 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन मीन्स कि हमने 9 न्यूटन की फोर्सेस ऐड की हैं और किस डायरेक्शन में ऐड किए हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इट मीन्स के करेक्ट ऑप्शन विल बी 9 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट। Now next question is that two forces F1 and F2 acts on the object O in the direction shown.
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, आपने बताना है इनके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, आप देखें ये दोनों फोर्सेस वेक्टर्स ऑलरेडी एडेड है, आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। सो जस्ट ट्राई आउट द पैरेललोग्राम मेथड। क्या होता है पैरेललोग्राम मेथड में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। आफ्टर ड्राइंग पैरेलल हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मींस के ओरिजिनल वेक्टर्स, और एंड होता है द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल्स। तो दैट इज द रिजल्टेंट, ठीक है, इस कंडीशन में। अब आप इस रिजल्टेंट को कंपेयर करें अपने ऑप्शन से, सो दैट इज द ऑप्शन डी। Now next question, this is quite similar question, इसमें भी आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट। सो अगेन अगर हम इसको पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करें, मींस के इसके अगर पैरेलल ड्रॉ करने के बाद अगर हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो इट विल लुक लाइक दिस। सो अब अगर हम इसके ऑप्शंस को कंपेयर करें, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपने क्या करना है, टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स एट अ पॉइंट ओ एज शोन, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द फोर्सेस। आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं था, सिर्फ आपने डायरेक्शन बतानी थी, तो आपने डायरेक्टली ड्रॉ करके बता दिया। अब जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो देखिए जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो एक तो मेथड ये होता है कि आप पहले स्केल बनाएं, स्केल अज्यूम करें कि लेट्स से 1 न्यूटन इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर, उसके बाद आप वेक्टर ड्रॉ करें, फिर आपको पता चलेगा रिजल्टेंट। बट एज दिस इज नॉट ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ मींस के क्वेश्चन ऑफ पेपर 2, दिस इज जस्ट एन एमसीक्यूज। इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा वेक्टर ड्रॉ करके फिर आप फाइंड करें रिजल्टेंट। सो इन दिस कंडीशन व्हाट यू विल डू, आप एक डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा डायरेक्ट मेथड, जो हमने डिस्कस किया था पैथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम फाइंड किस तरह करेंगे मैग्नीट्यूड। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो देखें जब हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो वेक्टर इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज ओ क्यू। तो हमने डायरेक्शन तो फाइंड कर ली कि ये आ गया ओ क्यू। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। सो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, सो जस्ट कंसीडर कि दिस साइड इज ए एंड दिस इज बी। अगर ये बी है मीन्स के 9 न्यूटन, मीन्स के अगर ये बी है तो दिस इज ऑल्सो बी, तो इट मीन्स के बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 9 न्यूटन। तो हमने जो फाइंड करनी है दैट इज सी, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सो दिस सी अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि सी को हम किस तरह फाइंड करते हैं। सो दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए इज द 12 एंड बी इज द 9। सो अगर हम इनके स्क्वायर्स कैलकुलेट करें, सो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का होता है 81। सो दोनों को ऐड करने से हमारे पास मिल जाएगा 225। सो सी इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225 और स्क्वायर रूट ऑफ 225 मीन्स के 50 न्यूटन। सो इन दिस में हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया 50 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन दैट इज ओ क्यू। इट मीन्स का ऑप्शन ए इज द करेक्ट one. Now next question is that forces of 3 Newton and 4 Newton are acting as shown in the diagram. Which diagram may be used to find out the resultant? Now I have just shown two options due to the less means के जो shortage of space, but इन दोनों में से correct option होगा। So अब आप without drawing, बिकॉज जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, नाउ आई होप कि आप विदाउट ड्राइंग पैरेलल आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। सो दैट विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रही है तो आप ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो विदाउट ड्राइंग आप बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डायग्राम शोज द एरोज रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर क्वांटिटीज, which diagram shows the resultant। अब देखें अगेन सिमिलर टाइप ऑफ जिस तरह पहले सॉल्व कर रहे हैं, बट डिफरेंस इज दैट पहले वाले में दोनों वेक्टर्स एक साथ ज्वाइंट थे, अब ये दोनों सेपरेटेड है। तो सिंपली अगर हम इनको दोनों को कंबाइन करें सो दे विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करें, सो सिंपली व्हाट वील डू जस्ट ड्रॉ देयर पैरेलल्स, ठीक है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रही है, अगर नहीं हो रही तो विदाउट ड्राइंग पैरेलल सिंपली आप इसके जो वेक्टर्स की ज्वाइनिंग पॉइंट्स है यहाँ से आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब इस रिजल्टेंट को अगर आप कंपेयर करें, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which diagram correctly shows the addition of 4 Newton and 3 Newton forces। सो मैग्नीट्यूड आपको रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है 5 न्यूटन, आपने सिर्फ उसकी करेक्ट डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें
अब हमने दो मेथड यूज किए थे, पैरेललोग्राम मेथड और हेड टू टेल रूल। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। अब देखिए पैरेललोग्राम मेथड में वेक्टर्स के जो टेल होते हैं दोनों ज्वाइन होते हैं। अब अगर हम टेल को ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि टेल कहाँ पर ज्वाइंट है, एक तो ये ए में ज्वाइंट है और दूसरा सी में ज्वाइंट है, ठीक है ना। सॉरी, ए में भी नहीं है, सिर्फ सी में है, दोनों वेक्टर्स टेल ज्वाइंट है। लेकिन जब पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम में जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की, दैट स्टार्ट्स, या जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ दीज ओरिजिनल वेक्टर्स। मींस के ये जो होगा रिजल्टेंट इन दिस केस वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सो दैट मीन्स के दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन ऑप्शन सी। सो इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर पैरेललोग्राम से कोई भी ऑप्शन सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है नाउ वील सी कि इज देयर एनी ऑप्शन दैट इज बीइंग एडेड यूजिंग द हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, जहाँ पर फर्स्ट फैक्टर का टेल होता है या फर्स्ट फैक्टर का हेड होता है, वहाँ से हम दूसरे फैक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू। अब ठीक है ना, इन दोनों को आप देखें, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में बिल्कुल इसी तरह है कि जहाँ पे फर्स्ट फैक्टर का हेड है वहीं से टेल ज्वाइन है। अब हम देखते हैं इन दोनों में से करेक्ट डायरेक्शन कौन सी होगी रिजल्टेंट की। सो जस्ट रिकॉल कि जो हेड टू टेल रूल है उसमें जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरह होता है कि दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इट गोज टूवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। या फिर आप ये कहें कि दोनों टेल एक साथ, दोनों हेड एक साथ। सो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन ऑप्शन ए, नॉट इन बी। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो ठीक है, सो दैट इज द ऑप्शन ए। सो अब आप देखें, एज आई टोल्ड यू कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है कि आप एक मेथड पे रिलाई नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आपको दोनों मेथड आने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैरेललोग्राम को ही प्रेफर करते हैं, बट आपको दोनों मेथड आने चाहिए बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि दे कैन ओनली बी सॉल्व यूजिंग द हेड टू टेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is the size of the resultant of the two forces shown in the diagram। आपने बताना है साइज। अब देखें, एक तो ये है कि ये 3 और 4 न्यूटन, इनका साइज हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि वो 5 न्यूटन आएगा, बट एज आपको फाइंड आउट करना है, सो यू मस्ट नो कि आप किस तरह फाइंड करेंगे। अब देखिए, आपने रिजल्टेंट का साइज फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो अगेन एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले स्केल ड्रॉ करें, स्केल अस्यूम करें, उसके बाद वेक्टर ड्रॉ करें, बट दैट विल नॉट बी अ सूटेबल वे इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज। तो यहाँ पर जो सूटेबल वे होगा दैट इज अप्लाइंग द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पैथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करें, मीन्स के सी की जो लेंथ फाइंड करें, सो दैट विल बी 5 न्यूटन। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व की थी। ठीक है, सो दैट विल बी 5 न्यूटन। Now next question, forces of 25 and 40 Newton act on an object in the direction shown. Which arrow shows the direction of the resultant force? तो now I hope कि आप without drawing बता सकते हैं कि कौन सी होगी। That is that option B, which is representing the resultant factor. Now next question, forces of 3 Newton and 4 Newton acts as shown in the diagram. Which diagram shows the resultant R of these two vectors। ठीक है, आपने resultant find करना है। So again आप without drawing आप बता सकते हैं कि that is represented by A, because अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनकी जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, यहाँ से वेक्टर का जो रिजल्टेंट स्टार्ट होगा, तो दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए। सी में है, लेकिन सी में जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। सो यू मस्ट रिमेंबर, आपने प्रॉपर डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when there is no wind, the engines of an airship push it due to the north at 20 meters per second। ठीक है, एक एयर शिप है जिसकी जो इंजन की जो आपको डायरेक्शन गिवन है दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, और उसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड। सो आपने उसका वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है ना, अब आप देखिए नॉर्थ का मतलब है अपवर्ड, तो आप अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड, आप देखिए चारों ऑप्शंस में आपको गिवन है 20, तो इट मीन्स कि यहाँ तक तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट एट 12 मीटर पर सेकेंड। सो अब आपने बताना है कि यहाँ पे करेक्ट वेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा। सो टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट का मतलब है दिस इज मीन्स के टुवर्ड्स द लेफ्ट
तो लेफ्ट की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड इज ओनली रिप्रेजेंटेड इन ऑप्शन बी। बाकी आप कहीं पे भी देखें इस तरह नहीं है, 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, बट दिस इज मीन्स के जो आपने आपने फाइंड करनी है रिजल्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगी आपने फाइंड करना है कि वेयर इज द रिजल्टेंट फोर्स। डी में भी है, लेकिन डी में बिकॉज जो रिजल्टेंट है दैट इज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट, बिकॉज जब आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, सो दिस विल करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट one. Now next question is that two forces x and y act on an object and produce a resultant force. The scale diagram represents the size and the direction of the forces x and y. Force z represents the resultant forces due to the x and y and keeps the object stationary. Which arrow represent the force? आपने resultant force find करनी है z, ठीक है। Now अब ये दोनों वेक्टर्स हैं, आपने फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट। सो देखें रिजल्टेंट, अगर आप बिफोर डिस्कसिंग दिस जस्ट थिंक अबाउट इट, आप खुद से फाइंड आउट करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सो नाउ इफ यू हैव चोजन ऑप्शन ए, ठीक है ना, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे कि रिजल्टेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर, सो अगर आप उस हिसाब से आप आपने चूज किया ऑप्शन ए, सो यू आर इनकरेक्ट। क्यों है आप गलत, आप इनकरेक्ट क्यों हैं? रीजन इज दैट अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली देखें, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें, जो आपको ऑप्शंस गिवन है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस। सो रिमेंबर दिस थिंग, जो एक्चुअल वेक्टर होता है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होता, वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। डॉटेड लाइन से जो होते हैं दैट आर द पैरेलल्स ऑफ द वेक्टर। इसका मतलब ये है कि आपको जो ऑप्शंस गिवन है दे आर नॉट द ओरिजिनल वेक्टर्स, दे आर द पैरेलल्स। ये आपको पैरेलल गिवन है, तो इसका मतलब है पहले अगर हम इन वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करें सो दे विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। अब जो आपको ऑप्शन गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इन पैरेलल को फ्लिप कर दें मींस अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है ना। ये होगा रिजल्टेंट जहां पे ओरिजिनल वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं और जहां पर पैरेलल्स। अब अगर इन पैरेलल को हम फ्लिप कर दें बिकॉज जिस तरह से हमारे ऑप्शंस गिवन है, सो इट विल लुक लाइक दिस। अब आप कंपेयर करके बताएं कि कौन सा होगा करेक्ट। तो अब आप देखें अगर आपने ए चूज कर लिया सो दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज ए जो है इसकी डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट है पैरेलल से, बट जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड्स द ज्वाइनिंग ऑफ द पैरेलल्स। सो टुवर्ड्स द ज्वाइनिंग ऑफ द पैरेलल कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज सी। सो दैट्स व्हाई आई कीप रिपीटिंग कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें बिफोर आंसरिंग, ठीक है। आप जब तक रीड नहीं करेंगे प्रॉपरली, इट माइट बी पॉसिबल आप उसका जो आंसर है वो इनकरेक्ट कर दें, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two forces of 3 Newton and 4 Newton act at a right angles to each other. Which diagram shows the resultant R of these forces? So this is quite simple. आप easily find out कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर से उनका रिजल्टेंट करेक्टली कहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, दैट इज इन ऑप्शन सी। Now moving to the last question, forces 4 Newton and 2 Newton act at a point. Which scale diagram shows the forces that have a resultant 4 Newton? आपने बताना है कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट 4 न्यूटन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है स्केल डायग्राम। पहले हम देख लेते हैं स्केल डायग्राम का क्या मतलब है। स्केल डायग्राम का मतलब ये होता है कि ये जो लेंथ आपको गिवन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल लेंथ। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्केल से मेजर करते हैं, लेट्स से दिस इज 4 सेंटीमीटर, सो दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द 4 सेंटीमीटर, वो होगी एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना। सो दिस इज मीन बाय स्केल डायग्राम। तो इसका मतलब है आपको ये जो वेक्टर्स गिवन है दे आर इन स्केल डायग्राम। सिंपली आपने बताना है आपको रिजल्टेंट 4 न्यूटन कहाँ पर मिलेगा। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आप अज्यूम कर लें कि लेट से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो आपने सिंपली इनके रिजल्टेंट ड्रॉ करने, ठीक है। रिजल्टेंट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है रिजल्टेंट होगा 2 न्यूटन। बाकी आप इन तीनों के ड्रॉ कर लें, आप मेजर कर लें जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू योर स्केल आपके 4 न्यूटन मिल रहे हैं, सो दैट विल रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, बट आई एम नॉट
saying या अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास यही आंसर है. So that's why I'm not focusing on the answer. I'm just focusing कि आपने किस तरह सॉल्व करना है. तो it means कि might be possible कि आपके पास जब ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शंस फ्लिप हो, बट आपके जहन में हो कि सर ने तो बी बताया था तो यहाँ पर बी भी होगा. सो बट कीप दिस थिंग, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बी हो. आपने जस्ट फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर आपको एक्चुअली जो अकॉर्डिंग टू योर स्केल 4 न्यूटन मिल रहे हैं, सो दैट विल बी द योर करेक्ट ऑप्शन. सो जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, फिर आपको पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट this video. So this was the first part of the MCQs from the dynamics. So inshallah we'll continue with some more questions. So keep watching so that you can have a clear idea कि जो question इस topic से related हैं dynamics से, उनको हम किस तरह solve करते हैं. Okay, have a nice day. Inshallah see you soon with the second part of the video.